السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور خبر شامل کریں، سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ کے علاقے اسپالگا میں خفیہ آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق شہید اہلکار میں حوالدار تاجب علی اور سپاہی راشد شامل ہیں۔ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا میران شاہ کے علاقے اسپالگا میں خفیہ آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید۔ شہید اہلکاروں میں حوالدار تاجور علی اور سپاہی راشد شامل ہیں۔ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا۔ ISPR کے مطابق میران شاہ کے علاقے اسپالگا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 سپاہی جام شہادت نوش کر گئے۔ ارض وطن کے محافظوں نے چھپ کر وار کرنے والے بزدل دشمن کو گردن سے دبوچ لیا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کام کرنے والے مادر وطن کے دشمن کی شاطرانہ چال نیست و نابود ہو گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کا طاق میں چھپے تقریب کاروں پر کاری وار، دشمن کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر بلوچستان کے ضلع آوران میں آپریشن کیا۔ اس آپریشن کے دوران گولہ بارود سمیت اسلحے کا بڑا ذخیرہ اور مواصلاتی آلات برآمد کر لیے گئے۔ سندھ پولیس آپس کے جھگڑے پر تبادلے ہونے لگے۔ کراچی میں بچوں کا جھگڑا ہوا تو بڑے افسر نے چھوٹے کا تبادلہ کر دیا۔ بااثر افسر نے ASI کا تبادلہ کیا۔ فیروز آباد میں تعینات ASI کو دفتر رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ASI مشتاق کا کہنا ہے کہ میرے بچوں اور پولیس افسر کے بچوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ چھوٹے افسر نے اعلی حکام سے تبادلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ پولیس میں آپس کے جھگڑے پر تبادلے ہونے لگے، بچوں کا جھگڑا ہوا، بڑے افسر نے چھوٹے کا تبادلہ کر دیا۔ بااثر افسر نے ASI کا تبادلہ کر دیا۔ فیروز آباد میں تعینات ASI کو دفتر رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ میرے بچوں اور پولیس افسر کے بچوں میں جھگڑا ہوا تھا، پولیس افسر کا بیان۔ ASI کا اعلی حکام سے تبادلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور مافیا سرگرم ہو گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سیکٹر 11 میں نامعلوم ملزمان بھتے کی پرچی پھینک کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے پرچی کے ساتھ پستول کے 2 راؤنڈز بھی پھینکے۔ پولیس نے شہری کی درخواست پر تفتیش شروع کر دی۔ گزشتہ روز اولڈ لیاری دھوبی گھاٹ پر بھتے کی پرچی پھینکی گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں، کراچی میں بھتہ خور مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سیکٹر 11 میں نامعلوم ملزمان بھتے کی پرچی پھینک کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے پرچی کے ساتھ پستول کے 2 راؤنڈز بھی پھینکے۔ پولیس نے شہری کی درخواست پر تفتیش شروع کر دی۔ گزشتہ روز اولڈ لیاری دھوبی گھاٹ پر بھی بھتے کی پرچی پھینکی گئی تھی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ احسن آباد میں پولیس نے 2 مبینہ ڈاکو دھر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ڈاکوؤں سے موٹر سائیکل اور ایک پستول برآمد کی گئی۔ کراچی کا امن و امان ایک بار پھر چور اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں برباد ہونے لگا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مبینہ ڈاکو دھر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ڈاکوؤں سے موٹر سائیکل اور ایک پستول برآمد کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ احسن آباد میں پولیس نے 2 مبینہ ڈاکو دھر لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ڈاکوؤں سے موٹر سائیکل اور ایک پستول برآمد کیا گیا۔ سوہاوا کے نوائی علاقے نورپور سیدہ میں ٹرانسفارمر کو آگ لگ گئی، جس نے قریبی گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈا آفس میں شام سے ٹرانسفارمر میں شعلے نکلنے کی اطلاع تھی۔ درجنوں گھروں کے بجلی کے میٹر اور چیزیں جل گئیں۔ علاقہ مکینوں نے دھمکی دی ہے کہ نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا تو وابڈا آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ سوہاوا کے نوائی علاقے نورپور سیدہ میں ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی، جس نے قریبی گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وابڈا آفس میں شام سے ٹرانسفارمر میں شعلے نکلنے کی اطلاع دی گئی تھی. درجنوں گھروں کے بجلی کے میٹر اور چیزیں جل گئی ہیں. علاقہ مکینوں نے دھمکی دی ہے کہ نقصان کا ازالہ نہ کیا گیا تو وابڈا آفس کے باہر احتجاج کریں گے. پنجاب میں طلباء کا انتظار ختم ہو گیا. تعلیمی بورڈ نے میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. لاہور میٹرک بورڈ کے امتحانات میں 2,37,000 طلباء نے شرکت کی، جس میں سے 1,69,596 پاس ہو گئے. چیئرمین بورڈ کا کہنا ہے کہ کامیابی کا تناسب 71.51% رہا. گجرانوالہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 78.18 اور راولپنڈی بورڈ میں 75.65% رہا. بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا. صوبائی محکمہ تعلیم نے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خصوصی پلان مرتب کر لیا. سرکاری تعلیمی اداروں کے سالانہ امتحانات بھی اس سال دسمبر کی بجائے اگلے سال مارچ میں لیے جائیں گے. عبدالغنی کاکڑ رپورٹ کریں گے. وادی کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر اضلاع میں صوبائی محکمہ تعلیم نے کھولے گئے تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خصوصی حکمت عملی مرتب کر لی ہے. صوبائی سیکریٹری سیکنڈری ایجوکیشن شیر خان بازئی کہتے ہیں کہ تمام متعلقہ سکولز میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. میں نے سب کو ہدایت دی کہ آپ لوگ الرٹ رہے، خاص کر وہ بچیاں یا اساتذہ جس میں تھوڑا سا سمپٹمز ہو اس کو فوراً گھر بھیجا کریں اور اس کو دوبارہ ہمیں اس کا نام وغیرہ انٹیمیٹ کیا کریں تاکہ ہم لوگ ہیلتھ سے کوارڈینیٹ کر کے اس کی فوراً ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اور اگر کوئی مسئلہ بڑھتا ہے تو اسکول کو ہم لوگ بند کریں گے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر کوئٹہ فرزانہ احمد زئی کے بقول سرکاری تعلیمی اداروں میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں سمارٹ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. بیورو آف کریکولم کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ایک کورس کو متعارف کریں. کورس مینس کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس کو سمارٹ کرنے میں. سمارٹ کرنے کا یہ ہے کہ وہ ہم امپورٹنٹ چیپٹرز کو ہم نے لے کے ونٹر زون کے لیے، چونکہ سمر زون پھر بھی کور کر سکتے ہیں. سمر زون اگر اللہ نہ کرے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سچویشن ہمارے ساتھ اور جو ہے مشکلات ہمارے لیے نہ ہوں، اسی لیے ہم نے پہلے 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو کھولا ہے کہ ہم پہلے اس کو دیکھنے کے بعد پھر مڈل پہ جائیں گے، پرائمری پہ. سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے. اس چیز کی خوشی ہے کہ ہماری پڑھائی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اسکول میں ہمیں جو SOPs ہیں اس کے تحت ہمیں اسکول میں انٹر کیا جاتا ہے. جب ہم آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہینڈ واش کرائے جاتے ہیں. ہمیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا ان کو ماسک مہیا کرتے ہیں. اسمارٹ سلیبس آیا، ہم اس کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں اور چھٹیوں میں بھی ہم اپنی تیاری کریں گے. اپنی کلاسز میں بیٹھے ہیں تو ہم لوگوں کی مس نے ہم لوگوں کو مطلب زگ زیگ کی صورت میں بٹھایا ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے سے نہ بات کرنے دیتی نہ ہاتھ وات ملانے دیتی، کہتی بس دور دور سے 6 فٹ کے فاصلے پہ رہو. بلوچستان میں محکمہ تعلیم نے اس سال سرکاری اسکولوں کے سالانہ امتحانات بھی دسمبر کے بجائے مارچ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بچے اپنے گھروں میں بھی موسم سرما کی تعطیلات کے دوران اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ. ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. رپورٹ کریں گے اظہر ندیم. منچن آباد میں سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں کو پار لگ چکی. آئے روز کی مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا دوبر کر دیا. سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی. دوسری جانب پریس کنٹرول کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب ہیں اور انتظامیہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے. عوام کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اس بے جا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی کا چولہا بھی جل سکے. آئے روز منچن آباد مکروڑ گنج مہنگے دام سبزیاں سیل ہونے، فروٹ اور سبزیاں غریب عوام لینے سے تنگ آ چکی ہے اور فروٹ اور سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. سبزیاں اور فروٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. غریب آدمی کی پہنچ سے سبزیاں اور فروٹ خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے. منچن آباد میں سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں کو پار لگ چکے ہیں اور غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ اظہر ندیم، سچ نیوز، منچن آباد. دیگر شہروں کی طرح سمندری میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. رپورٹ کریں گے شہباز مدنی. سمندری میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ کر شہریوں کو منہ چڑھانے لگا. شہری سستی سبزیاں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے.
कहीं रेट लिस्टें ही वेजा नहीं तो कहीं दुकानदार शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि गोश्त तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर था, अब सब्जियां खरीदना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। कद्दू शरीफ है वो भी 120 रुपए किलो हुआ है। शलजम है जो 10-20 रुपए किलो वाली चीजें थी 120 रुपए किलो हुई हैं। गोश्त तो पहले दूर था आवाम की पहुंच से, अब सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर हुई है। हर एक लै के बह गया, सब्जी जाओ बाजार चो लभदी नहीं, कोई चीज चल जाओ लभदी नहीं। जुट्टी जी 800 की 1500 की हुई है, कितने लोग जान। हाँ जी उसने दावे किए, उन्होंने वादे किए, मैं बिजली बिल गरीब आदमी 6-6 8-8 बिल लाता पाया। गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरियों का जीना अजीरन हो गया। जहां जरूरियात जिंदगी की दूसरी अशिया महंगी हुई हैं, वहीं सब्जियों को भी पर लग गए हैं। आवाम का मुतालबा है कि हम पर रहम किया जाए। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज समंदरी। टोबा टेक सिंह में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में इजाफे के बायस आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। सब्जी की बात की जाए तो आलू, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्च, टमाटर समेत फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आलू और मसाला जात की कीमतों में भी 40 से 50% तक इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल नजर नहीं आती। रोजमर्रा इस्तेमाल वाली चीजें जो है उनके ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल है। सब्जियां है वो मनमानी कीमत लगा पे बेची जा रही हैं। फ्रूट मनमानी की 60 रुपए 70 रुपए किलो का हमें तवीज दे देते हैं, लेकिन आज भी चीनी 100, 105, 10 रुपए किलो बिक रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद बुखारी समेत आला हुकाम से सब्जी और फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। लाहौर में 2 हफ्ते गुजरने के बाद आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और इस पर काबू न पाया जा सका। शहरी परेशान है, कहते हैं जाएं तो जाएं कहां, 2 वक्त की रोटी भी मिलने से रही। तफसीलात फरहान एजाज की रिपोर्ट में देखिए। भागों के शहर लाहौर में आटे की किल्लत का बहरान थम न सका। 15 रोज गुजरने के बावजूद भी आटा मार्केट से गायब है। गरीब शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। एक तो आटा मिलता नहीं, जहां से मिलता है उसकी कीमत इस कदर ज्यादा है कि खरीद भी नहीं सकते। आटे की किलो तो काफी ज्यादा है, लेकिन वो कम जगह पे मिल रहा है। अगर मिलता है तो ब्लैक में मिल रहा है। और उसके बाद उसकी रोटी है बिल्कुल सख्त हो जाती है, वो सही आटा नहीं, पुरानी गंदम का जैसे सूखी रोटियां पीसी इन लोगों ने। जो इन्होंने पहले थैला 20 किलो का था, अब वहाँ पे रेट लिखा हुआ है 880 रुपए। उनके पास जाओ भाई ये लिखा हुआ है, आप दे क्यों नहीं रहे? वो कहते हैं हमारे पास है नहीं है। एक जानिब आटा मार्केट से गायब है तो दूसरी जानिब आटा चक्की की जानब से गंदम की कीमतें बढ़ जाने से आटे की कीमतों में मुतादिद बार इजाफा किया जा चुका है। चक्की मालकान कहते हैं गंदम ना होने की वजह से मजबूरन आटा महंगे दामों फरोख्त करना पड़ रहा है। सारी प्रॉब्लम जो है ना गंदम की है, गंदम नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आटा का बहरान आया हुआ है। गंदम मिले तो आटा मिलेगा, लाजमी बात है। जिससे आटा बनना है वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आटा किससे बनाएंगे हम? तो उस वजह से है। इसी वजह चक्की पे हमारे पास थोड़ी सी गंदम होती है जो हम पीस के दे देते हैं। हुकूमत की जानब से आम मार्केट में आटा 860 रुपए 20 किलो के थैले का रेट है, लेकिन मार्केट में आटा 1400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की पर आटा 76 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े और खबर दें हैदराबाद से, जहां सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल बल्दिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पैदल चलना भी महाल हो गया। मजीद देखते हैं जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट में। इलाके हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासमाबाद और टंडोजाम की कई अहम सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सड़कों और फुटपाथों पर जगह जगह लगे ठेले, केबने और पत्थरों की वजह से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोडों पर नाजायज तजावुजात की वजह से रोडों से गुजरने में मुश्किलात पेश आती है और घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। तजावुजात हैं और इंक्रोचमेंट है, ये ना ख़त्म कराई जाए, जिनकी वजह से ट्रैफिक में ना बड़ी परेशानी होती है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, आने जाने एम्बुलेंस वगैरह ये वो बड़े तकलीफ होता है और उनको चाहिए कि ये नाजायज तजावुजात जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएं। अगर हॉकर बाजार के लिए जगह दी जाती है
यहाँ की पार्किंग, तकरीबन 2000 मोटरसाइकिलें इस न्यू क्लाथ मार्केट जिसके अंदर 700 दुकानें हैं, उसकी 2000 मोटरसाइकिलें इसी रोड पे खड़ी होती। इतनी बड़ी मार्केट की कोई पार्किंग नहीं। मुझसे हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये थोड़ी इंक्रोचमेंट है, इसके लिए कुछ इधर से करें, या कोई मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या इन लोगों को थोड़ा सा इधर खड़ा करें और ये इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए इधर। शहरियों ने हुकूमत सिंध और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हैदराबाद शहर भर में तजावुज़ात का खात्मा करके अवाम को रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन इश्ताक हुसैन के साथ जाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। मियांवाली की तहसील पिपला में तजावुज़ात की भरमार है। सब 3 चौकता रेलवे फाटक सड़क के अतराफ तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला हरनौली रोड के अतराफ खारदार तार लगने और रेहड़ी बानों की जानिब से रेहड़ियां खड़ी की जाने के सबब रोड पर रश बढ़ गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। पिपला हरनौली रोड पर सिब्तैन चौक से रेलवे फाटक पिपला तक रोड के अतराफ तजावुज़ात की भरमार से शहरियों को शदीद ज़हनी दबाव का सामना रहता है और रश इस कदर बढ़ जाता है कि शायद वक्त पड़ने पर मजबूरी में किसी एम्बुलेंस को भी रास्ता न मिल सके। इंतजामिया को चाहिए कि पिपला हरनौली रोड पर तजावुज़ात के खात्मा समेत रेहड़ी बानों को भी रोजगार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करे, ताकि रोड पर रश कम से कम, ट्रैफिक की रवानी भी मामूल पर बरकरार होने समेत रेहड़ी बानों का रोजगार भी मुतासिर न हो। पिपला हरनौली रोड पर आए रोज बढ़ते तजावुज़ात इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया पिपला हरनौली रोड पर आए रोज बढ़ते हुए तजावुज़ात के खात्मा को यकीनी बनाए, ताकि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और रोड पर रश भी कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल गफार बच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज़, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। जिला भावलपुर के शहर चनी घोट में टाउन कमेटी तो बना दी गई, मगर ताहाल तैनात अमला न हो सका, जिसकी वजह से पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। भावलपुर के शहर चनीगोट में टाउन कमेटी में काम करने वाला अमला न होने की वजह से शहर में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पूरा शहर गंदगी में डूबा हुआ है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां और ताफून फैलने का बहुत ज्यादा खदशा है। इसके साथ साथ शहरियों को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन टाउन कमेटी में ताहाल अमला तैनात न हो सका। लिहाजा शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि टाउन कमेटी में अमला तैनात किया जाए, ताकि चनीगोट शहर के बेहतर तरीके से सफाई सुथराई हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में पंजाब पुलिस का एक और कारनामा। अदालत की जानिब से हुक्म इल्तवा के बावजूद कब्जा माफिया ने जमीन पर कब्जा जमा लिया और जमीन मालिकान पर ही मुकदमा करवा दिया। कबीरवाला के इलाके थाना सराय सिद्धू पुलिस ने मिली भगत से मुबैना तौर पर जमीन के मालिकान पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। असलहे से लेस मुसल्लह अफराद ने 8 एकड़ ज़रई अराजी पर धावा बोल दिया, जबकि पुलिस कब्जा माफिया से मिली भगत करके 11 साल की बच्ची को FIR में नामजद कर दिया गया। 7वीं जमात की तलबा जमानत कराने स्कूल यूनिफॉर्म में अदालत पहुंच गई। बच्ची ने अदालत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। मैपको का कारनामा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटअद्दू में रेहड़ी वाहन को 85,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया। कोटअद्दू में महकमा वापडा ने मेहनत कश पर बिजली गिरा दी। कोटअद्दू के इलाके सुल्तान कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद रमजान को 85,000 रुपए से ज्यादा का बिल भेज दिया। मोहम्मद रमजान के मुताबिक घर में बिजली से चलने वाला एक पंखा और एक ही बल्ब है, जिसका 85,000 से ज्यादा बिल भेज दिया गया है। मुतासरा शख्स का कहना है कि गुर्बत की वजह से इतना बिल भरने की सकत नहीं रखता, इसलिए मैपको ऑफिस से राब्ता किया तो बिल कम करने के बजाय बिल न भरने की सूरत में बिजली काटने की धमकी दे दी गयी। मेरा बिल है 85,100 रुपया। मैं गारड़ी वाहना ते मैं कितों पूरी करके दवा जी। मेहनत मजदूरी करना 400-500 रुपया, एक बल्ब ते एक पक्खा आया ते निके निके बाल मैं किधर जावा, पक्की ते चले जावा जां गारड़ी वावा। मजदूरी करके इन्होंने पैसे कितों पूरे करके देवांगा। मकान बेचा जां गारड़ी बेचा, इतने पैसे तां भी नहीं पूरे होंदे। मुतासरीन ने मैपको हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कोटअद्दू में सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने पर खवातीन सरापा एहतजाज बन गईं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अस्साक काज़मी।
इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की बेहिसी, शहर के वस्त में रेलवे स्टेशन की करीबी आबादी सीवरेज के पानी में डूब गई। इससे गंदे पानी के तालाब उबल पड़े, लिंक रोड भी डूब गया, रास्ता बंद, रिहायशी परेशान। MPA और इंतजामिया से मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद नोटिस न लिया गया। सीवरेज के पानी से घर डूब रहे हैं, घरों की दीवारें मुतासर होने लगी। सुनवाई न होने पर रिहायशी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों पर फट पड़े। गंदे पानी से मुतासरा अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए सीवरेज के पानी को निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अदू। बाग की मरकजी शाहराह ढेली रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे आमिर अली। बाग की मरकजी शाहराह डुल्ली रोड मेन पुल से हैदरी चौक तक जगह जगह गड़े पड़ने से खस्ता हाल हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सड़क की टूट फूट की वजह से हादसात की शरह में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और हैरत की बात यह कि बाग के दोनों मुंतखब नुमाइंदे दिन में कई बार इसी सड़क पर सफर करते हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क की मरम्मती के मद में महकमे के पास मौजूद फंड आखिर जाता कहाँ है। 5-6 माह से पिछले से ये खड्डा मौजूद है और इससे जितने हमारे दुकानदार हैं उन तमाम के दुकानें भी इससे खराब होती हैं। जब बारिशें होती हैं इसमें पानी भर जाता है, यहाँ से लोगों का चलना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। महकमा शाहरात की लापरवाही है। ये इंतहाई कम पैसों में ये इसकी रिपेयरिंग हो सकती है, मगर वो जब तक हमारे जो सरकारी महकमे जब कोई बड़ा डिजास्टर न हो, कोई बड़ा हादसा न हो, उस वक्त तक वो इसको देखते रहते हैं। मज़कूरा सड़क की नागुफ्तावे हालत पर शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से इसकी फौरी मरम्मती का मुतालबा आए रोज मुल्क भर की शाराएं अपनी प्यास इंसानी खून से बुझा रही हैं। हुक्मरान मौत की इन राहों को तरजीही बुनियादों पर दुरुस्त और जरूरत के मुताबिक तैयार करवाएं। सड़क के दरमियान मौजूद इन गढ़ों से उठने वाले धूल और मिट्टी से शहरी और ताजर मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे तो दूसरी जानिब ट्रैफिक जाम और हादसा भी मामूल बनने लगे हैं। कैमरामैन वजी मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग आजाद कश्मीर। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बस्ती मलोक और दुनियापुर को मिलाने वाला वाहिद रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। शुजाबाद की मेन शाहराह और बस्ती मलूक और दुनियापुर को मिलाने वाला वाहिद रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार होने के बायस गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस निकासी आप के नाकिस इंतजामात की वजह से जगह जगह बारिशों का खड़ा पानी ज्वार का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस आस पास के रहने वाले इलाका मकीनों में टाइफाइड, मलेरिया जैसी मुख्तलिफ मौजूदी बीमारियां फैलने का खदशा और गुजरने वाले राहगीरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था मसला सीवरेज का निज़ाम का है। सीवरेज में इसकी निकासी जो है वो कहीं नहीं दिखाई जाती, रिस्क घरों में जाता है, उनकी बुनियादें हिल रही हैं और ये बाकी पानी जो है सड़क पे आ जाता है। हालांकि इस वक्त ये बस्ती मोहम्मदपुर जो है कमेटी के अंदर भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने 12 एहतजाज किया, उसके बाद हमारे सीवरेज का निज़ाम नहीं था तो इन्होंने बोला जी हम आपको नाला बना कर देते हैं। नाला इन्होंने ऐसा बनाया कि हमारी आबादी से 4 फीट ऊपर बना दिया। अब हमारे वैसे ही हम 4 फीट नाले से नीचे हैं, हमारे वैसे ही अगर बारिश ना भी हो तो हमारे गली मानों का घर जो है 4-4 फुट में वैसे ही भर जाता है। तो निकासी का इसका अपना नाले का कोई निकास नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, रोडों पर पानी है, घरों में पानी है। तो किसी MNA साहब ने, MPA साहब ने या AC साहब ने किसी ने भी हमारे किसी बात को कोई सुनवाई नहीं। मुबशिरुल हक कैमरा, वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। दर्जनों इलाकों को लैया करोड़ रोड से मिलाने वाला रास्ते पर कायम रेलवे फाटक तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोटलाल ईसन में दर्जनों नवाही इलाकों को मेन रोड लैया करोड़ रोड से मिलाने वाली सड़क पर रेलवे फाटक बंद होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा कि असा ये पुरअमन एहतजाज अज कीता है, ये अहले इलाका को पैगाम दिता से उन्हें को सदाए से इतना उन्हें शिरकत की थी, उन्हें दा बहुत तावन है। महकमा हाईवे की जानिब से फाटक मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने पर फाटक की बंदिश से किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम ने मुतालबा किया है कि अगर रेलवे फाटक को ना खोला गया तो कल से रेलवे ट्रैक पर पुरअमन धरना दिया जाएगा। कैमरामैन जॉन आबिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़लाल ईसन। चौक सरवर शहीद का मुल्तान मियां वाली रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार था। मुतअद्दिद बार निशानदेही के बावजूद इंतजामिया को होश न आया तो नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रोड की तामीर शुरू कर दी। मजीद बता रहे हैं चौधरी साजिद अली अपनी रिपोर्ट में।
चौक सरवरशही से गुजरने वाला मुल्तान मियां वाली रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। हालिया बारिशों की वजह से रोड में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो चुका था और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही थी। मुतअद्दिद बार निशानदेही के बावजूद इंतजामिया ने चुप साध रखी थी। चौक सरवरशही के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रोड की तमीर और मरम्मत शुरू कर दी ताकि मुख्तलिफ हादसात से बचा जा सके। नौजवानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुल्तान रोड दा MM रोड है, इत्थे ये गड़ा तकरीबन 2-3 माह तो तकरीबन 4-4.5 फुट गड़ा है। इत्थे कई दफा हादसा तो होए ने, इंतजामिया खामोश बैठी सी। असी अपनी मदद दे तहत ये गड़ा असी खुद यार दोस्त मिल के खुद बनवाण डे आ कि इंदा कोई हादसा ना होवे। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਚੌਕ ਸਰਵਰਸ਼ਹੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ टूटिया पिया वा पूरा रोड, बारिशां होंदियां ने ते कई हादसे पेश आंदे ने। ट्रांसपोर्टर और शहरियों का कहना था कि नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने खर्चे पर रोड की तमीर कर रहे हैं। जो काम इंतजामिया और सियासतदान ना कर सके वो नौजवानों ने कर दिखाया। शहरियों का अपनी मदद आपके तहत रोड की तमीर और मरम्मत करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवरशही। मोहब्बत एक ऐसा वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख बहरे सुन और गूंगे बोल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही परिंदा दिखा रहे हैं जिसका मालिक और कबूतर यकजां और दो कालिब की मिसाल बन गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी अपनी रिपोर्ट में। खुदा के बाद मोहब्बत सबसे बड़ी सच्चाई और तहरीक है। मोहब्बत वो वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख बहरे सुन और गूंगे बोल सकते हैं। मोहब्बत वो एहसास है जो जुलसाती धूप में ठंडक, यख बस्ता मौसम में हिद्दत और घटाटोप अंधेरों में रोशनी बखेर देती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बेजुबान परिंदे से करवा रहे हैं जो एक इंसान की मोहब्बत में अपनी परवाज भूल चुका है। इसकी जिंदगी का महवर यही एक शख्स है जिसके साथ वो साए की तरह चिपका रहता है। कभी मजबूरी में इसे घर या कहीं और छोड़ दिया जाए तो ये अपनी महबूब की याद में राह तकता रहता है। इसे देखते ही उड़कर उसके कंधों पर आकर बैठ जाता है और अपने मालिक के मुंह से दाना खाए बगैर पेट ही नहीं भरता। ये अपने मालिक से अंधी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है जो यक जान दो कालिब की मिसाल पर पूरा उतरता है। मैंने बचपन से रखे हुए हैं कबूतर। एक बच्चा, एक रात का बच्चा था, उसके माँ बाप मर गए, उसको मैंने अपने मुंह से पाला तो जवान हो गया। जब बच्चा जवान हुआ कबूतर तो उसने कहा मैं परिंदा हूँ, मुझे आंख में अकल दी है, तुझे अकल दी है, मुझे समझने की कोशिश कर, मैं वो काम करूँ जो दुनिया में किसी परिंदे ने ना किया हो। अब इस परिंदे के अंदर इतनी सलाहियत है, अपने मुल्क के दिफा के लिए भी काफी काम कर सकता है। जी हाँ, ये जिक्र है कबीरवाला से लाहौर मोड़ के रिहायशी मिर्जा इख्तियार बेग का, जो पिछले कई सालों से कबूतरों की तरबियत करने के अलावा इन्हें अपने बच्चों की तरह इतने प्यार से पालता है कि इनका कहना है कि मैं कहीं भी सफर करूं, ये मेरी वालहाना मोहब्बत में साए की तरह मेरे पीछे उड़ते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल मेरे कबूतर के प्यार से रखे नाम मोहसिन की है, जो हर वक्त मेरे साथ रहता है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पे सवार हूँ तो ये 120 किलोमीटर फी घंटा के एतबार से मेरे साथ परवाज कर सकता है और जहां इसे रुकने का इशारा करूं तो ये उड़कर मेरे कंधों पर आ जाता है। इख्तियार बेग का कहना है कि मैं एक कबूतर को 15 से 20 दिनों की मेहनत से तैयार कर लेता हूं और मेरे कहने पर किसी दूसरे के पास भी चला जाता है और मैं इसे मोहसिन के नाम से पुकारता हूं तो ये उड़कर मेरे पास आ जाता है। मेरे साथ मोटरसाइकिल के साथ उड़ता है, कार के साथ उड़ता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे मेरे साथ करता है। मैं इसके साथ मुखलिस हूँ, ये मेरे साथ मुखलिस है। अगर जो इंसान ऐसे मुखलिस हो जाए तो पूरी कायनात के अंदर जो है ना कोई भी ऐसी चीज ना इंसान को दरपेश का मुकाबला करना पड़े। कबूतर और मालिक का ये अनोखा प्यार देखने लोग दूर दराज से मेरे पास आते हैं और हमारी वालेहाना मोहब्बत देखकर हैरान रह जाते हैं। प्यार की जुबान इंसान तो क्या हैवान भी खूब समझते हैं। शर्त ये है कि प्यार दिल से किया जाए। मालिक इख्तियार बेग का कहना है कि हुकूमत मेरी मदद करे तो मैं उन कबूतरों को मुल्की दिफा के लिए तरबियत दे सकता हूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। दरिया सिंध के किनारे बसे शहर लिया की तारीख 5000 साल पुरानी है। इसी तरह दरिया सिंध के किनारे आबाद केल कबीले के लोग हजारों साल पुरानी तारीख के हामिल हैं। इस कबीले की दरिया से मोहब्बत, रहन सहन और जरिया माश के बारे में रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। दरियाए सिंध के किनारे बसे शहर लिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। दरिया किनारे आबाद केल कबीला के लोग भी हजारों साल पुरानी तारीख के हामिल हैं।
अगर इन्हें दरिया सिंध का बेटा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिंदगी की तमाम आसाइशों से बेनियाद इस कबीला के बच्चों, मर्दों, खवातीन का मस्कन हमेशा कच्ची मिट्टी और झाड़ियों से बनी झोंपड़ियां रही। इनका जरिया मुआश टोकरे बनाने के अलावा कश्ती के जरिए लोगों को साजो सामान समेत दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाना है। दरिया सिंध और कील कबीला का साथ जन्म जन्म का है। इस कबीला की खवातीन अपने बच्चों को दरिया के मोहब्बत के राग सुनाते सुनाते बड़ा करती हैं। ऐसे दरिया की मोहब्बत इनकी घुट्टी में शामिल हो जाती है। दरिया की लहरों के हाथों कई नस्लों से तबाही के मनाजिर देखने के बावजूद ये कबीला दरिया का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। इनकी दरिया से लाजवाल मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर की चकाचौंध इनकी दिल में बसी दरिया की मोहब्बत को कम न कर सकी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में जारी पहला फ्रेंड ऑल पाकिस्तान ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में 36 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में जारी पहला फ्रेंड ऑल पाकिस्तान ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में 36 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल फैसल 11 सरकला और तहजीब 11 चकमलूक के दरमियान खेला गया, जिसमें सरकला 11 ने चकमलूक 11 को जीतने के लिए 61 रन का हदफ दिया, जो चकमलूक 11 की टीम पूरा न कर सकी और सरकला 11 ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी इंचार्ज MNA सेक्रेटरीट सरदार आमिर अब्बास, चेयरमैन कोर कमेटी व इंचार्ज सेक्रेटरीट PTI मरकज डुमन मलिक वसीम करामत अवान, वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग चकवाल हाफिज जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख वकार अली, DSP सैयद अजहर हुसैन शाह, चौधरी जुएब जेबी चकौड़ा और नन्हे मेहमान खसूसी सरदार अरशमान हैदर थे। मेहमानी खसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चकवाल के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं और जहां ग्राउंड आबाद होते हैं वहीं के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। फाइनल मैच के इख्तिताम पर मेहमानी खसूसी ने टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में और रनर और विनर आने वाली टीमों में कैश इनाम और ट्रॉफियां तकसीम की। टूर्नामेंट के फाइनल को देखने के लिए आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब, अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कोय सलेमान के इलाके आफी बंद का दौरा किया। इलाका मकीनों ने वजीर आला को इलाके के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कोय सलेमान के इलाके आफी बंद का दौरा किया। इलाका मकीनों ने वजीर आला को मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने आफी बंद के इलाके में स्कूल और पिकनिक पॉइंट बनाने का ऐलान किया। वजीर आला का कहना था कि सफेद को जैसा इलाका पंजाब का हिस्सा है मगर तरक्की में सदियों पीछे है। आफी बंद जैसे इलाकों की महरूमियों को दूर किया जाएगा। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब। 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से होगा। 3 करोड़ 96 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाएगी। पोलियो फ्री बनाने का मिशन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज 21 सितंबर से होगा। 3 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 3 करोड़ 96 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 67 लाख, आजाद कश्मीर में 6,69,000 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 2,39,000, पंजाब में 1 करोड़ 99 लाख, बलोचिस्तान में 24.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। इस्लामाबाद में 3.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 2,70,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। इंसदाद पोलियो टीमों को कोरोना SOPs बारे तरबियत फराहम की जाएगी। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। खानेवाल में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 21 सितंबर से होगा। मजीद तफसीलात अरशद हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी ने DHQ अस्पताल खानेवाल में असिस्टेंट कमिश्नर बुख्तियार इस्माइल, CEO हेल्थ डॉक्टर मारियम मुमताज, अफसरान सेहत, मुलाजमीन और वालदैन के हमरा 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहिम के दौरान जज्बा के साथ काम करने की जरूरत है। जिला भर में पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान हमारा टारगेट 5,52,000 है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने वाली टीमों से ताउन करें। पोलियो वर्कर्स और बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए SOPs पर अमल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। की तहसील चूनिया में अगवा की वारदात का ड्रॉप सीन। 3 बच्चों में से 1 बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। चूनिया में अगवा होने वाले 3 बच्चों में से एक नौमौलूद बच्चे को आरिफ वाला से बाजियाब करा लिया गया। बच्चे को अगवा करने वाले अपने ही अजीज निकले।
16 दिन के अब्दुल रहमान को बाजियाब कराया गया, जबकि 6 दिन की बच्ची और 20 दिन के अयान का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। टोबा टेक सिंह में गन पॉइंट पर वारदातें करने वाला बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से नाजायज असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई। टोबा टेक सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों से लूट मार करने वाले डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार हो गया। मुलजिमान नवाही गांव में सड़क पर नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के सरगना को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से नकदी, नाजायज असला और मोबाइल शनाख्ती कार्ड बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम डकैत राजनी, चोरी और दीगर वारदातों में पुलिस को मतलूब था। हारूनाबाद शहर और गिरदो नवा में नौसरबाज खवातीन का गिरोह सरगर्म। नौसरबाज खवातीन ने दुकानदार को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। नौसरबाज खवातीन गिरोह की फुटेज न्यूज टॉप ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात अरशद अली की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना सदर हरुणाबाद की हदूद में नौसरबाज खवातीन का ग्रोह सरगर्म। नौसरबाज खवातीन दुकानदारों को बातों में मसरूफ करके चोरी की वारदातें करने में मसरूफ अमल हैं। अड्डा शहीद चौक में नौसरबाज खवातीन के ग्रोह ने कपड़े की दुकान पर दुकानदार को हजारों रुपए का चूना लगा दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नौसरबाज खवातीन के 4 रुकनी ग्रोह ने 50,000 रुपए मालियत के कपड़े के थान चोरी कर लिए, जबकि सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस थाना सदर अभी तक मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। गुज़श्ता माह कबल थाना सदर की हदूद में पहले भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस वाइज झूठी तसल्लियों के कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही। मुतासरा दुकानदार की आला हुकाम से दर्दमंदाना अपील है कि नौसरबाज खवातीन के गिरोह को फिलफौर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि दूसरे दुकानदार इन नौसरबाज खवातीन के हाथों लुटने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। लोगों के मसाइल सुनने और उनके हल के लिए माराकंड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खटक कहते हैं, सूबाई हुकूमत के अहकामात पर अवाम के मसाइल जल्द से जल्द हल करने और जिली इंतजामिया अपने तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। देखते हैं आमिर अब्बास की इस रिपोर्ट में। खिला के इलाके ताना बाबूजई में डिप्टी कमिश्नर मनाकर नया गुल खटक की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका अवाम ने मसाइल के अंबार लगा दी। मकामी लोगों ने सेहत, सुई, गैस, बिजली, मंशियात और तजावीज़ात से मुतालिक मसाइल की निशानदही की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलाकर ने कहा, बाज़ मसाइल के हल करने के लिए मैंने इधर जो अफसरान है उनको हुक्म दिया, बाज़ मसाइल इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हल करेंगे, लेकिन उनके सारे मसाइल जो है बहुत जायज मसाइल है, इंशाल्लाह इनका हल हम निकालेंगे। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपनी शिकायत जिली इंतजामिया को दर्ज करवाई। कुछ को मौके पर हल कराने की हिदायत की, जबकि कुछ मसाइल हल कराने के लिए मोहलत मांग ली। तो अभी इंशाल्लाह मैंने इस हिसाब से कहा है कि वो प्रिंसिपल साहबान से कोऑर्डिनेट कर ले, इधर जो हमारे लीव वाले हैं इंशाल्लाह वो भी उनके साथ हेल्प करेंगे और हम सारे ग्राउंड जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक खोलेंगे इंशाल्लाह। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहमत अली वजीर और असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान, सूबेदार मेजर फरीदुल्लाह खान, DHO वहीद गुल समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान मौजूद है। पूरी खैबर पख्तूनख्वा में कुलिंग कचहरी का इनेकाद से अवाम की मसाइल में कुछ न कुछ कमी आएगी। मुल्क को सरसब्जो, शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन। चिश्तिया में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अदालत में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मजीद तफसीलात राना इमरान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने और साफ शफाफ मुल्क रखने के लिए चिश्तिया में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए अदालत में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें अदालत के अहाते में पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम की तकरीब का इनकाद एडिशनल सेशन जज यासर अरफात की अदालत में हुआ और अदालत के अहाता में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राना मोहम्मद सलीम, सेशन जज अब्दुल रफीक और सेशन जज यासर अरफात ने वज़ीर-ए-आज़म के विजन को आगे बढ़ाते हुए पौधे लगाए। शजरकारी मुहिम की तकरीब के दौरान सेशन जज राना मोहम्मद सलीम के साथ तमाम अराकीन ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। कैमरामैन टीम के साथ राना इमरान, अफजल सच न्यूज, चिश्तिया। दरख्त न सिर्फ सदका जारिया बल्कि फिजाई आलूदगी को कम करने का बेहतरीन जरिया भी हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम सुखैरा ने न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स हासिलपुरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुल्तान।
दरख्त फजाई आलूदगी को कम करने का बेहतरीन जरिया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन पाकिस्तान को अमली जामा पहनाने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम सुखेरा, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद ताहर खलील, सदर बार एसोसिएशन फयाज शाहद अदमाना, जनरल सेक्रेटरी इमरान सफदर गुराया, रेंज अफसर महकमा जंगलात राना साजिद महमूद, सुप्रीडेंट अदालत हाजा मोहम्मद सदीक गुम्मन व दीगर ने न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स हासलपुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जबकि आखिर में पौधों की आबियारी मुल्क व मिल्लत की सलामती, बका और तमीर तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम सुखेरा और सदर बार एसोसिएशन फयाज शाहद खान अदमाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के हुक्म से शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। हमारा इलाका तो वैसे ही बहुत गर्म इलाका है, तो ये सवाब का काम है। दरख्त लगाना न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि सुन्नत नबवी और फजाई आलूदगी को कम करने का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सलमान अरशद, सच न्यूज, हासलपुर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कमालिया में CEO हेल्थ मुमताज हुसैन और CEO एजुकेशन आफ्ताब सयाल के अहकामात पर तालीमी इदारों में तुलबा और असातिज़ा के फ्री कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए CEO हेल्थ टोबा टेक सिंह मुमताज हुसैन और CEO एजुकेशन आफ्ताब सयाल के हुक्म पर कमालिया लिबार्ट्री हाई स्कूल में कोरोना वायरस के फ्री टेस्ट का आगाज कर दिया गया। इसके बाद ये सिलसिला तहसील भर के तमाम स्कूलों में शुरू किया जाएगा। तालीमी इदारों में मरलावार तमाम असातिज़ा कराम और तलबा के फ्री कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कोरोना फ्री टेस्ट भी SOPs का हिस्सा है और आज से सारी टीमें तहसील भर के स्कूलों में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना फ्री टेस्ट करेंगी। टेस्ट में 20% असातिज़ा और 5% तलबा के टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता है। इसमें बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ से दो चार नहीं होना पड़ता। इस हवाले से असातिज़ा कराम को खुसूसी ट्रेनिंग के साथ हिदायत भी जारी की गई हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे क्योंकि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। असद राजपूत, सच न्यूज TV, कमालिया। रेस्क्यू 1112 इंसान तो इंसान जानवरों को भी बचाने में पेश सहवाल में 70 फीट गहरे कुएं में गिरने वाली भैंस को बड़ी महारत से जिंदा निकाल लिया गया। सहवाल में अड्डा बहादुर शाह के गांव मौजा बशीरा में 70 फीट गहरे कुएं में भैंस गिर गई। वाक़े की फौरी इत्ला रेस्क्यू 1112 को दी गई, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जदीद मशीनरी के जरिए भैंस को कुएं से निकाल लिया, जिस पर अहले इलाका ने रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई की। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।